مجھے مار لیں مجھے. کیوں الزام لگا رہے ہیں مجھ پر؟ کیا کروں؟ مار لیں مجھے. اتنا بڑا کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں یقین کر بیٹھی تو ہوئی اس سامنے. لا میں کدھر چلی جاؤں؟ کوئی منی ٹریل نہیں ہے, کوئی پیسے کا ریکارڈ نہیں ہے. میں تو بولا بھی نہیں جاتا. میں اتنی ہرٹ ہوں, میں اتنی زیادہ تکلیف میں ہوں. بوڑھی ماں جن کو اب نظر بھی ٹھیک نہیں آتا, وہ دیکھ نہیں سکتی, وہ پیپرز پڑھ نہیں سکتی. ہمیں جسٹس, ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. آپ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. میں نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں آپ رو رہی تھی, آپ کی والدہ ساتھ تھیں, کسی پراپرٹی کا معاملہ تھا, کوئی قبضہ مافیا تھا جو آپ کو تنگ کر رہا تھا. کیا تھا سارا ایشو؟ دیکھیے, جب میں پاکستان میں نہیں تھی تو قبضہ گروپ کے ایک لیڈر جو کہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, جو کہ ایک نہایت مکار شخص کا نام ہے, جو کہ بیوہ اور کمزور عورتوں کو ڈھونڈ کر ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, نشانہ بناتے ہیں. جیسے انہوں نے نشانہ بنایا میری والدہ کو. میری امی کی عمر 70 سال کی ہے. اچھا, 70 سال کی عورت کو انہوں نے نشانہ بنایا. کس طرح بنایا, کیا ہوا تھا؟ اور یہ لوگ, یہ گروہ, یہ اسپیشلی ایسی خواتین کو ڈھونڈتے ہیں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, اور ان کو نشانہ بنا کر ان کو مار دیتے ہیں. جھوٹے ڈاکومنٹس, جھوٹا پیپر ورک, اور ساتھ میں لوگوں کو ملاتے ہیں اور ان کو یا تو قتل کر دیتے ہیں, یا راستے سے ہٹا دیتے ہیں, یا ان خواتین کی, ان بیچارے اور ان غریب, ان کی آواز دبا دیتے ہیں. نہ ایوانوں تک پہنچتی ہے, نہ عدالتوں تک پہنچ پاتی ہے, اور نہ ہی میڈیا پر پہنچ پاتی ہے. آپ کی امی کی ایک پراپرٹی جس کو ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے خرید کے 9 کروڑ روپیہ کیش دے دیا آپ کی امی کو. ہماری پراپرٹی پر اپنے گنڈے بھیجے جن کے پاس امریکن گنز تھی. دن دہاڑے وہ پراپرٹی پر پلازے کے اندر تھے, اور میری امی کے ساتھ انہوں نے بہت نہایت بدتمیزی کی, میرے بھائی کے ساتھ. اس پراپرٹی کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ پھر کاغذات پہ کچھ آپ کے انگوٹھے بھی ہیں, دستخط بھی ہیں, وہ ان تک کیسے پہنچ گئے؟ وہ فیملی فرینڈ تھا. میرا بیٹا بنا ہوا تھا. میرے بیٹے کے ساتھ جب اس نے یہاں پہ آ کے تیسری شادی کی ہے تو اتنا وہ آتا تھا. پہلے 15 سال سے مخدوم امین کے ذریعے سے ہمارا واقف بنا. مخدوم امین فہیم جو تھے نا کراچی والے, امین فہیم, ان کا, ہاں جی, ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کا تھا نا یہ, تو ان کی وجہ سے یہ ہمارے پاس آتا رہا. ٹھیک ہے, یہ سگنیچرز آپ کے وہاں تک کیسے پہنچے؟ میرا ایک ڈسپیوٹ چل رہا تھا, یہ LDS وہ سیل کروا دیتا تھا. آپ کے علم میں نہیں تھا, اور یہ انڈر دی ٹیبل سیٹلمنٹ کر کے آپ کا وہ پراپرٹی سیل کرواتا تھا. مجھے کہتا تھا, میں گیا تھا LDA میں, میرا بہت بڑا افسر جو ہے نا میرا جاننے والا ہے, مجھے سائن کر کے آپ نہ دے دیں, میں وہاں پہ ان کے LDA میں جا کے لکھواؤں گا اپلیکیشن. ایک یہ تھی وجہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ میں لاسٹ اگست میں 20 میں لندن جانے لگی, تو کہنے لگا کہ آپ کچھ کاغذ جو ہے نا سائن کر کے, ایک وکیل اس نے مجھے پہلے دیا تھا, تو اس کو سائن کر کے دے دے. تو میں نے اس کو 1-2 پیپر سائن کر کے دیے. ان پیپرز میں کون خالی کچھ نہیں تھا, آپ نے ایمٹی پیپرز, پلین پیپر پہ بلینک پیپر سائن کر دی. سائن LDA کے لیے کیا تھا. نان شخص کو خالی کاغذ دے. پلاننگ کافی عرصے سے کر رہا تھا ایم عالم والی پراپرٹی کا, کیونکہ وہ کمرشل پراپرٹی اور وہ ایک ورتھ کرتی ہے, اس کی کافی ویلیویبل ہے. یہ جب ہمیں پرابلم میں دیکھا ہے اس نے کہ میری والدہ مشکل میں پھنس چکی ہیں اور میری بہن کو پیسے چاہیے, تو اس نے جو 3-3.5 کروڑ دینا تھا ہمارے گھر کا ڈیفینس والے فیز 8-111 کا, اس نے جلد بازی میں جو ڈاکومنٹس فالز یہ بنا رہا تھا, یہ جو فورجری کر رہا تھا, یا جو یہ فراڈ کرنا چاہ رہا تھا, یہ کرنا چاہ رہا تھا ایم عالم پہ. لیکن ایمرجنسی میں چونکہ یہ گھر آ گیا 111 فیز 8 والا, تو اس نے
उसको भी हड़पने की कोशिश की। वो जाके मेरी वालदा से ट्रांसफ़र करवा लिया। ट्रांसफ़र करवाने के बाद जब उससे पैसों का तकाजा किया गया कि ये पैसे अब हमें दो इसके, तो इसने टाल मटोल शुरू कर दी। अब टाल मटोल ये ज़्यादा देर नहीं कर सकता था। इसको पता था कि मैं टाल मटोल नहीं कर सकता, मेरे इनके साथ हालात बिगड़ जाएंगे। 27 को अपने टेनेंट्स के साथ खड़े थे जो 4 महीने से, एक टेनेंट 4 महीने से पिछले और एक टेनेंट माशाल्लाह 10 साल से है वहाँ पे, जो हमारे टेनेंट्स हैं जिनका हमारे साथ लीगल एग्रीमेंट हुआ हुआ है। ठीक है। तो हम वहाँ पे थे तो हमें एकदम 5-6 लोग आए डंडे लेके, जिन्होंने ईंटें लेके, जिन्होंने मुझे मारा और मेरी वालदा के साथ ज़दोकोप किया। वहाँ पे जो किराएदार थे उनको हरेस किया, उनका मोबाइल छीना। मैंने 15 पे कॉल की, 15 पुलिस उसी वक्त आई मौके पे और जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनको वहाँ से लेके गई। पुलिस स्टेशन हम जब गए, पुलिस स्टेशन जाके उसने ये दावा कर दिया कि मैंने तो इस प्रॉपर्टी पे स्टे लिया हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, शफकत ज़ारा बुखारी ने, मेरी वालदा ने इसको बेच दी हुई है। ठीक है। तो वहाँ पे SHO साहब ने पूछा कि तुम कैसे ये क्लेम कर सकते हो, क्योंकि तुम तो इन पोजेशन ही नहीं हो उस प्रॉपर्टी पे और ये मालिक है। तुम्हें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाओ, कोई ऐसी चीज़ दिखाओ। जिसके बाद इसने नकली रसीदें, जाली रसीदें दिखाना शुरू कर दी। ये उनमें से एक रसीद है जाली। अब इसको जाली साबित करना मेरे लिए क्यों मुश्किल नहीं है, ये उसने कोर्ट में प्रेजेंट की है, ये कोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब इसको जाली साबित करना क्यों मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये देखें आप, एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक उर्दू में लिखा हुआ है। एक MM आलम का है, MM आलम का कि मैंने जनाब शफकत ज़ारा को 80 लाख रुपया दे दिया, और इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने शफकत ज़ारा को $1,60,000 कैश दे दिया। ठीक है। पेपर पे साइन एक जैसे ही? बिल्कुल, ये पेपर एक पेपर है, एक पे ये बिल्कुल ये साइन अंगूठों का स्कैन हुआ हुआ है। ये एक उसने जाके प्रेजेंट कर दिया डिफेंस में। डिफेंस अथॉरिटी जो एक अथॉरिटी है जो बाय सेल करती घरों में, जहाँ पे जो बीच में ग्रेंटर्स हैं, उनको जाके ये दिया, और दूसरा ये अदालत में दिया। ठीक है। अब ये आप देखें कि इसकी फोर्जरी खुल के सामने है। ये आप जब जाएगा चेक होने के लिए तो ये पता चल जाएगा कि इनमें से ये जो रसीदें इसने बनाई हुई हैं, अगर आप मेरी बात समझ रही हैं, फ्रॉड कहीं ना कहीं तो कोई चीज क्लू छोड़ देता है। क्योंकि फ्रॉडिया था, फ्रॉडिया ने अपने निशान छोड़ दिए। ये समझता है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है, यहाँ की अदालतें इसे मैनिपुलेशन कर लेगा, पुलिस को कुछ मैनेज कर लेगा। मुझे नहीं पता इसके दिमाग की मेंटालिटी क्या है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये रिकॉर्ड रखता है 420 का। ये फ्रॉड, इसने एक दफ़ा नहीं, इसके ऊपर मुतअद्दिद FIRs हैं और हैप्चुअल क्रिमिनल। सारी प्रॉपर्टीज का हम बाकायदगी से टैक्स पे करते हैं, टैक्स देते हैं। वो तो कहता है आप टैक्स पेयर नहीं है। कहता है मीरा को निकाल के चेक कर ले, मीरा टैक्स पेयर नहीं। वो तो इतने बड़े बड़े दावे करता है कि मीरा फलां को लूट के खा गई, मीरा फलां को लूट के खा गई, मीरा ने मुझे भी लूटा। मैंने 9 करोड़ रुपया कैश में जाकर मुख्तलिफ वक्त में इनके घर में 30-30 लाख रुपए करके इनकी वालदा को मैं देता रहा, जो कि मीरा के इल्म में। अच्छा, 25 साल में हाँ। आप एक काम करें, 25 साल में एक मनी ट्रांजैक्शन, एक मनी ट्रेल दे दें मुझे। उसका ये कहना है कि मीरा को, अब चूंकि फिल्म कोई नहीं आ रही, मीरा मीडिया में नहीं है, तो मीडिया में आने के लिए मीरा ने स्टंट खेला है। ये शायद का कहना है कि स्टंट खेला आपकी जानिब से। कौन सा स्टंट? ये मीरा को पब्लिसिटी चाहिए हाईलाइट होने के लिए, और एक और बात भी कह रहा है, मुझे कॉल सुलह के लिए भी आई है। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। आप नहीं, मैं स्पेसिफिक इसकी बात कर। अनीला, मेरा CDR निकलवाइए। कोई सबूत है तो छुप क्यों रहा है? पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं होते? और देखिए, ये चोर हैं इसलिए छुप रहे हैं, पहले भी छुपते थे, आज भी छुप रहे हैं, और चोर हमेशा छुपता है। मनी ट्रेल, मनी ट्रेल कहाँ है? सबसे बड़ी बात, आपने प्रॉपर्टी ली, मनी ट्रेल दिखाएं, बैंक ड्राफ्ट दिखाएं, बैंक ट्रांजैक्शन कहाँ है? तो कहता कैश में दिया। 2021 जंगल का कानून है। पाकिस्तान एक जंगल है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान एक जंगल है? बिल्कुल नहीं। लोग क्या समझते हैं जो अमेरिका, लंदन से, वो समझते हैं पाकिस्तान जंगल है। ऐसा नहीं है। मैं और आप जंगल में रहते हैं? नहीं, बिल्कुल। हाँ, हमारा वतन है। और मैं और आप, हम काला धंधा करते हैं। मेरी वालिदा ब्लैक का काम करती है। हमारी वाइट, हमारी प्रॉपर्टी अगर हम सेल करेंगे तो हम बैंक ट्रांजैक्शन
कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक से इन्वॉल्व होते हैं। 2 लाख रुपया कोई ऐसे नहीं देता, उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, चेक्स बनते हैं। जंगल में रहते हैं मेरे 9 करोड़ रुपया कहता है मैंने कैश दे जंगल में है ना, पाकिस्तान एक जंगल है। पता नहीं कितने लोगों ने फिर हम सबको 100 करोड़ दिए होंगे कैश में। जंगल है, हम जंगल में रह रहे हैं, कहाँ है वो पैसे? मेरा ख्याल है मुझे बताइए ना, मुझे देना कोई पैसे, कहाँ? एक 70 साल बूढ़ी औरत को 9 करोड़ आपने दे दिए कैश में, इतना बड़ा दिल, और दे दीजिए। एक और चीज वो कहता है कि उसको फंसाया जा रहा है क्योंकि वो यूके नेशनल है। अच्छा, हाँ उनको कहे ना हम आपको फंसाना नहीं चाहते, आप मनी ट्रेल दे दें प्लीज। हाँ अक्सा रुबाब के अकाउंट में जर्मनी या लंदन के बैंक की आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो मनी ट्रेल दे दें। आपने पैसे 1,60,000 पाउंड अक्सा को दिए हैं, वो आप साबित कर दें, वो पैसे दे दें, वो मनी ट्रेल दे दें प्लीज। मनी ट्रेल दे दे। जी हाँ, चलें, या पाकिस्तान मेरे अकाउंट में भेजे हैं आपने। दुबई, मेरा दुबई में भी अकाउंट है। अच्छा। मेरा अमेरिकन चेज बैंक में भी मेरा अकाउंट है, दुबई इस्लामिक बैंक में भी मेरा अकाउंट है, अक्सा का लंदन में अकाउंट है, मेरी छोटी बहन शाइस्ता का डबलिन में अकाउंट है। वो दे आर प्रोफेशनल्स, वो काम करती हैं। और अम्मी का भी बैंक अकाउंट है, एमसीबी बैंक में अम्मी का अकाउंट है। तो मनी ट्रेल दे दें, मेरे अब्बू का दे दे, मेरी अम्मी का दे दे, मेरी बहनों का दे दे, कोई मनी ट्रेल आप दें कि आपने ये पैसे दिए। कहता है मीरा को कुछ याद नहीं रहता, मीरा को तो वैसे भी पागल करार दिया जा चुका है। इसके बारे में कुछ नहीं कर। अब मैं आपसे कह रही हूँ, आप मनी ट्रेल, मुझे आप बताएं किस बैंक में आपने पैसे जमा करवाए। कहता है कैश लेके आया था 30 लाख एक दफा, 50 लाख एक दफा, 70 लाख एक दफा, 2 करोड़ एक दफा, और एक बार तो उसने ये भी कहा कि 10 मिलियंस जो हैं वो भी इनकी आपकी वालदा का कुछ चेक है उसके पास। वो सब फ्रॉड